Okay, Henry Fewell, 14 Principles of Management. In 1916, Henry Fewell provided a list of 14 principles in book titled Industrial and General Administration. Okay, so maybe this will be asked for the objective. Okay, Henry Fewell has provided that principle in Dash book. So just go through this. And whatever the 14 principles, we'll see one by one. The first is the division of work. The work in an organization must be divided among individuals and the department. That means the one person or the one department should not be overloaded with the work. There should be a proper division of work. That means if this individual is doing, that means a division proper, that individual should be provided with the work that is done only by him. Okay, he should not be overloaded. And again, in organization, there are various departments like finance department, marketing department, HR department, production department, and according to their specialization, they should be allotted the work. That means division of work is very much important. Next point is authority and the responsibility. According to Henry Fewell, there should be a proper balance between the authority and the responsibility. If the authority exists, okay, then two problems. See, if the authority is more than responsibility, the manager may be misuse it. That means कि अगर manager के पास बहुत ज़्यादा authority है, तो he will misuse it. And responsibility अगर है तो वो frustrated हो जाएगा. So there should be proper authority and the responsibility. The third principle is discipline. Discipline is very important. Okay, Fewell states the need for a discipline in an organization. Discipline is very much important, not only in the organization, not only in the professional life, but also in the personal life also. A discipline needs to follow from the top level to the lower level in an organization. That means the top level management itself should be disciplined. Okay, because the top level management is one who are framing the policies, so they themselves should be follow the discipline first. Okay, so it flow from top to bottom. Okay, next, it involves the application and dedication of the employee. That means the employee should be dedicated to work. See, once you enter into the organization, आप अपने job पर आ रहे हो, तो you keep aside all your personal problem, all your personal issue. You are working, see, you're getting the salary and you should work for your organization. And at that time, it is very important the employee should be dedicated to the work. Next, the unity of command. A subordinate should receive order from only one superior. That means कि suppose a Mr. A, if Mr. A, एक Mr. A है जिसको X भी command कर रहा है, Y भी command कर रहा है, Z भी command कर रहा है, तो it is very difficult for Mr. A. So there should be only one superior. Okay, अगर नहीं होगा तो देखो वहाँ पे last time में लिखा है too many cooks spoil the soup. If one soup is prepared by too many cooks, तो क्या हो जाएगा, वो कुक्स जो सूप है वो स्पॉइल हो जाएगा. नेक्स्ट, a unity of direction. There should be a same direction to all the employees doing the similar activities. A particular activity must be directed with the help of the single plan. Suppose if I am the superior and under me there are 10 people are working, so I should direct all the 10 people in the same way. Okay, it is not that if 10 people are working under me, तो मैं 1 को कुछ और बोल रही हूँ, 2 को कुछ और बोल रही हूँ. Okay, there should be a proper direction. So if I'm taking the meeting, for example, see, if a meeting is going on, lecture is going on, I have total 26 participants in with me. That means आप लोग जितने 27 है, मैं सबको एक ही डायरेक्शन में बता रही हूँ, एक ही जैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ. आई एम नॉट टेलिंग कि इसके लिए अलग, उसके लिए अलग. Okay, there should be a proper direction. Next, subordination of interest. The interest of the organization should be primary and that of the employee or group of the employees should be secondary. That means when you're working for an organization, you should think your organization first. जब आप organization के लिए काम कर रहे हो तो आपको अपने organization के लिए सोचना है. Definitely आपको अपने खुद के लिए भी सोचना है, but organization plays a very important role. Next is a remuneration, that is wages and salary. That means people who are working in an organization, people who are devoting their time, they should get wages and salaries. The अगर लोग काम कर रहे हो तो उनको पैसे मिलना चाहिए. Okay, और क्योंकि अगर उनको पैसे नहीं मिलेंगे, उनको सैलरीज नहीं मिलेंगे, उनकी वेजेस नहीं मिलेंगे, तो उनकी लाइफ की जो भी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल क्लोथिंग एंड शेल्टर, बेसिक्स नीड्स है या जो भी नीड है,
वो पूरी नहीं होगी। बिसाइड्स फ्यूल स्ट्रेस कि सिर्फ सैलरी और वेजेस ही नहीं मिलना चाहिए, नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिलना चाहिए। दैट मीन्स गुड वर्किंग कंडीशन, दैट मीन्स अगर को जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन फैसिलिटीज हो, प्रॉपर विंडोज हो, ओके अगर आप फैक्ट्रीज में काम कर रहे हो तो प्रॉपर मशीनरीज हो, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज हो, सैनिटेशन फैसिलिटीज हो, देयर शुड बी प्रॉपर कैंटीन बिकॉज इफ यू आर वर्किंग फॉर 8 to 10 आवर्स तो आपको कैंटीन चाहिए, ओके तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आई होप यू आर लिस्निंग स्टूडेंट। Yes, ma'am. Okay. Next, there is a centralization. Fuel data center matters to be centralized and other to be decentralized. As I told you, traditional management में कि what is centralization? Okay, centralization का मतलब होता है कि सारे power अपने हाथ में नहीं होना चाहिए. There should be balance. Not what happened earlier कि top level management keep all the major decisions with themselves. Okay, they not give authority. This तो अभी क्या है कि they have to certain thing उनको अपने हाथ में रखना है और कुछ चीजें जो है वो अपने लोअर लेवल या मिडिल लेवल के हाथ में भी दे देना है। ओके, देयर शुड बी प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन। देन देयर इज अ स्केलर चेन, it refers to the line of command which runs from top level to lowest level in the organization. Fuel status scalar chain need to be followed but not all the time. This spread in the scalar chain should be broken if the situation no demand, okay, so demand in the end, that means scalar chain follow करना है। now scalar chain कैसे follow होगा, वहां पे देखो आपको triangle दिख रहा है स्टूडेंट, इसको गैंग प्लान भी बोलते हैं। दिस यू ऑलरेडी स्टडीड, बट देन टू जो है प्रॉपर चेन होगी, रन्स फ्रॉम टॉप टू मतलब ऊपर से नीचे, दैट मींस ए बी को, बी सी को, सी डी को, एन डी ई, या फिर दूसरी तरफ ए से एल, एल से एम, एन ओ। ओके, इट्स नॉर्मली यही फॉलो करना है, लेकिन अगर सिचुएशन डिमांड करती है कभी कभी तो इसको तोड़ भी सकते हैं। दैट मींस एक वहां पे दिया है एफ कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ पी। ओके, एफ कभी का हो तो यू कैन सी एफ ट्राइंगल के एक साइड पे है, एक कॉर्नर पे है, और पी दूसरी जगह। अगर जरूरत है, इमीडिएट कुछ है, तो दोनों भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ऑर्डर। फ्यूल स्टेट देयर शुड बी ऑर्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, एवरीथिंग मस्ट बी देयर इन ऑर्डर। देयर शुड बी प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग मस्ट बी इन प्लेस, प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मशीनरी विजिट करना है तो मशीनरी फैक्ट्री में होना है, अगर आपको कोई स्टेशनरी चाहिए तो वो ऑफिस में होनी चाहिए। ओके, तो हर चीज जो है ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस पे होना चाहिए। Next is equity. Equity means the social justice. All the members of the organization should be given the fair and the just treatment depending upon the performance and the circumstances. That means that there should be no discrimination on the basis of any religion or any caste, any community. Okay, all the employees, all the members of the organization सबको fair treat करना चाहिए. Definitely there is a difference in the salary. जो पुराने workers हैं on the basis of seniority, on the performance, definitely salary will be different. But जो equity maintain करना है, suppose if the person newly joined, अगर दो लोगों ने न्यूली ज्वाइन किया है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ने, अगर मिस्टर ए की सैलरी 20 है तो बी की भी 20 होना चाहिए। देयर शुड बी नॉट डिस्क्रिमिनेशन। एंड इन द केस अगर किसी को ट्रांसफर करना है या किसी को प्रमोशन देना है, दैट ऑल्सो डिपेंड टोटली जस्टिस में होना चाहिए, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। एम्प्लॉय शुड नॉट बी केप्ट टेम्पररी। से टेम्पररी मींस के आई एम इन द जॉब, लेकिन वो मेरी जॉब जो है वो परमानेंट नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन मुझे कभी भी जॉब से निकाल सकती है। तो व्हाट आई विल डू, आई कीप ऑन सर्चिंग दूसरा जॉब, तीसरा जॉब। तो इससे क्या होगा, आई कैन नॉट गिव 100% टू माय करंट जॉब, आई कैन नॉट बी फुली डेडिकेटेड कमिटेड टू माय प्रेजेंट जॉब। सो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, देयर शुड बी टेम्पररी पीरियड। लाइक फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय को अपॉइंट किया 1 year, 2 year या 3 year से, नॉर्मली जो इंडस्ट्रीज का रूल है एम्प्लॉयमेंट वो 3 years होता है कि 3 years जो भी एम्प्लॉय है, न्यू एम्प्लॉय, उसको प्रोबेशन पे रखते हैं। एंड आफ्टर अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आफ्टर 3 years उसको जो है परमानेंट कर देते हैं। अगर बहुत दिन तक एम्प्लॉय को टेम्परेरी रखा या फॉर एवर टेम्परेरी रखा तो ही विल नॉट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ही विल गो। और अगर एम्प्लॉय चला जाता है, इफ देयर इज ए टर्नओवर, तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी लॉस होता है और एम्प्लॉय को भी। ओके, नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि काम स्टार्ट करना। अगर आपको कोई मेजर डिसीजन लेना है तो यू शुड नॉट वेट फॉर अदर। द सुपीरियर मस्ट सैक्रिफाइस हिज ओन वैनिटी टू एनकरेज एंड इंस्पायर टू दोज अंडर हिम। दैट मींस के अगर कुछ काम है और आपका सबऑर्डिनेट है जो आपके नीचे काम करता है, वो आके आपको कुछ आइडिया दे रहा है, तो सुपीरियर को ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं मैं सुपीरियर हूँ, मैं तेरा आइडिया नहीं सुनूंगा। वो अपने आइडिया को सैक्रिफाइस करके अपने सबऑर्डिनेटर को जो है वो वेलकम कर सकता है।
Okay. Last is spread the crops. The superior must encourage the spread the crops among his subordinate if the team spirit. Okay, that means the creation of the team spirit is very important. ऑर्गेनाइजेशन में से बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत सारे लोग काम करते हैं. अगर एक नॉर्मल भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी है, तो वहाँ पे 25 to 50 पीपल्स आर वर्किंग. एंड जब तक वो लोग साथ में मिलके सारे काम नहीं करेंगे, तो जब तक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होगा. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सारे जो है वो मिलकर एक साथ काम करें. आई होप ऑल द 14 पॉइंट इज क्लियर. स्टूडेंट प्लीज Yes, रिस्पॉन्ड. ma'am. Management skill. Let's see. According to the Robert L. Katz, popularized the concept of the managerial skill, which was earlier developed by the Henry Fayol. Okay, Henry Fayol ने बनाया था management skill, जिसके ऊपर बाद में काम किया रॉबर्ट ने. उसमें उसके हिसाब से मैनेजमेंट में 3 skills है: conceptual skill, human skill and technical skill. Let's see one by one. What is a conceptual skill? You can see diagram over there. आपको डायग्राम दिख रहा है. ओके, वहाँ पे 3 लेवल्स एरोज बता रहा है: टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, इन द लोअर लेवल. नाउ लेट्स सी दैट conceptual skill. Conceptual skills help the manager to visualize, to diagnose and to understand the various aspects of the managerial problem or the situation. That means कॉन्सेप्ट से आपने वर्ड कॉन्सेप्ट सुना है. दैट मीन्स कि जो मैनेजर होता है उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा, उसको डायग्नोज करना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रॉब्लम है. ओके, अकॉर्डिंग टू कर्स द टॉप मैनेजमेंट रिक्वायर मोर ऑफ द कॉन्सेप्चुअल स्किल एज कंपेयर टू दैट ऑफ लोअर मैनेजमेंट. दिस इज बिकॉज टॉप लेवल मैनेजमेंट स्पेंड मोर टाइम इन द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. नाउ कॉन्सेप्चुअल स्किल में क्या होता है, वी कम टू नो कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रॉब्लम है. सी फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो एम्प्लॉई है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के हमारे राइवल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रही है, हमारी मशीनरी जो है वो खराब हो रही है. तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है उसका काम, ये काम कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट. तो अकॉर्डिंग टू कर्ट्स, जो कॉन्सेप्चुअल स्किल है, ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉब्लम है या ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनको सॉल्व कैसे करना है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल स्किल. और ये कॉन्सेप्चुअल स्किल जो है ये मोर ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए है, because top level management is deal with the planning. Okay, उसके बाद next जो skill है that is human skill. It refers to the interpersonal skills. All the manager at all the levels need to have such skill. This is because manager at all the levels needs to interact with the persons. Okay, human skill का मतलब होता है कि human being के साथ किस तरह से deal करना है, and human being is very sensitive. Okay, तो human skill जो है वो हर level पे, whether it's a top level, whether it's a middle level or whether it's a lower level. तो it is a manager's duty कि वो ये देखे कि जो है उसको लोगों के साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर माई स्टूडेंट एंड यू ऑल आर ह्यूमन बीइंग, है ना? सही बोल रही हूँ मैं? आई एम करेक्ट स्टूडेंट? हेलो. Yes, ma'am. हाँ. So I okay. If I'm teaching to FI BBI, then too I am dealing with human. If I'm teaching to FI BMS, human. If I'm teaching to FI BAP, okay, whichever class I'm teaching, so I should understand. I should understand the problems. Sometimes it's happen कि आप लोग absent हो जाते हो, genuine reason होता है और आप मुझे genuine reason दे रहे हो, तो I should understand. Okay. मुझे मोटिवेट करना है, आपको आपके अंदर टीम स्पिरिट डेवलप करना है, तो ह्यूमन स्किल होना चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट इज टेक्निकल स्किल. टेक्निकल स्किल्स हेल्प टू अंडरटेक डे टू डे ऑपरेशन. सी इन द ऑर्गेनाइजेशन मशीनरीज होती है, कंप्यूटर्स होती है, टेक्नोलॉजी होती है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट के जो मैनेजर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, स्पेशली लोअर लेवल, जो लोग एक्चुअली प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं, उनके पास टेक्निकल स्किल है. फॉर एग्जांपल सी, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बना रहे हो, अचानक कंप्यूटर बंद हो गया. ओके, तो यू शुड नो कि अगर कंप्यूटर थोड़ा माइनर प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको रीस्टार्ट कर दो. या अगर बहुत ज्यादा डेटा हो जाता है तो कभी कभी हम लोग डेटा फॉर्मेट कर देते हैं या बहुत सारी चीजें डिलीट कर देते हैं फोन पे. तो ये सारी टेक्निकल स्किल्स जो है वो आना चाहिए. ये 3 जो है वो इंपॉर्टेंट स्किल्स है. इसके अलावा और भी स्किल्स जो है वो है डिजाइन स्किल्स. इट रिफर्स टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. मैनेजर शुड नॉट जस्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम बट डिजाइन द बेस्ट सोल्यूशन. ओके, डिजाइन स्किल में दैट मींस कि मैनेजर को पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है, मैनेजर देख रहा है कि एम्प्लॉइज लेट आ रहे हैं या एम्प्लॉइज जॉब छोड़ रहे हैं, तो सिर्फ उसको डायग्नोज नहीं करनी है प्रॉब्लम, बल्कि उसको सोल्यूशन भी निकालनी है. ओके, सपोज इफ द स्टूडेंट आर नॉट अटेंडिंग द लेक्चर, तो इट इज माय ड्यूटी कि आई फाइंड आउट कि मेरा लेक्चर स्टूडेंट क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं, मेरे लेक्चर में क्या प्रॉब्लम है. आई शुड फाइंड द सोल्यूशन आल्सो.
Next is the administrative skill. The manager, especially at the higher level, need to have ability to frame policies and plan. That means administrative skill. मैंने आपको last lecture में explain किया था कि administrator जो है they frame the policies. Okay, they should get the work done. वो policies बनाते हैं और वो policies वो lower level से काम करवा कर लेते हैं. उसके बाद next is the decision making skill. मैनेजर्स जो भी लेवल पे है, हर लेवल पे उनको डिसीजन लेना है, तो उनके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल होनी चाहिए. उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल. अगेन कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सी मैं आप लोगों के साथ अभी जो बात कर रही हूँ, दैट इज आई एम कम्युनिकेटिंग विथ यू. सो मुझे सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है ताकि वॉट एवर आई एम स्पीकिंग विथ यू, आई एम ट्राइंग टू गिव नॉलेज टू यू, आप लोगों को समझ में आए. एंड लास्ट इज द लीडरशिप स्किल. लीडरशिप स्किल का मतलब होता है कि लीडर्स, जैसे मैंने आपको बोला था, लीडरशिप स्किल होना चाहिए. लीडर ऑटोक्रेटिक भी नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेटिक भी नहीं होना चाहिए. There should be a proper combination between the autocratic and the democratic leadership. Okay, I hope this one is clear. Student, please Yes, respond. ma'am. Please Yes, respond. Okay, let's see contribution of the F.W. Taylor. Okay, now see, Henry Fewell is a father of what? Henry Fewell is a father of Modern management. management. and F.W. Taylor is a father of Scientific Scientific management. scientific management. Okay, why I am repeating this? Because you may get the objective type question for this. Now F.W. Taylor, he stress on scientific thing. Okay, the scientific management theory. Okay, so he has given the scientific management theory. He stress on the scientific method. According to him, management should be done with the help of the science also. So let's see कि वो क्या बोलना चाहता है. Taylor scientific management was based on the following principles. First, development of the true science of the management, so that the best way or method of performing the each task. That means according to him कि there should be a scientific approach in the management. अगर हम लोग scientifically approach करेंगे तो इससे क्या होगा. जैसे for example मैंने आपको एग्जाम पूछा था कि if you want to write 100 marks paper, तो आपको कितना टाइम मिलेगा for writing 100 marks paper? आपको कितना टाइम मिलेगा? Come on, tell me. 100 marks. 3 hours. 3 hours. Okay. तो जो मुंबई के जितने स्कूल्स है सबको 3 hours मिलता है कि हर स्कूल का अलग अलग होता है? It's common. Same, ma'am. सेम ना. तो दिस इज साइंटिफिक वे. दैट मीन्स के ये एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपेरिमेंट में पता चला कि इफ यू वांट टू राइट द 100 मार्क्स पेपर 3 hours is required. This is scientific. Then scientific selection of the worker. That means the selection of the worker. See जब वर्कर्स को भी सिलेक्ट करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ द साइंटिफिक. नॉट 10th स्टैंडर्ड के बाद देयर इज एप्टीट्यूड टेस्ट. मतलब यू नो, आप लोगों को पता है 10th स्टैंडर्ड के बाद एप्टीट्यूड टेस्ट होता था. ओके, एप्टीट्यूड का मतलब Yes, होता है ma'am. इंटरेस्ट. तो इससे पता चलता है कि सपोज अगर आप श्योर नहीं हो कि आपको आगे जाके साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है कि आर्ट्स लेना है. ओके, तो विद द हेल्प ऑफ दैट एप्टीट्यूड टेस्ट आप क्या कर सकते हो, ये फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका इंटरेस्ट कौन से फील्ड में. उसके बाद साइंटिफिक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. अगेन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जब तक आप साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं करोगे साइंस, ओके,